So, good afternoon, everyone. So, today we will start potential gradient. Okay. So, as per the definition of potential, you know that P is equal to minus integral E dot T. Okay. So, where E is electric field intensity, so potential V is given by minus E dot dl. Okay. So, incremental potential difference, incremental potential difference EV will be equal to minus E dot dl. Okay, so we can write like this. So this is leading to incremental potential difference del V. Okay, and these are A dot V is equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta. Okay, so it can be written as minus E dl cos theta like this. Okay. So magnitude of E into dl into cos theta. Okay. So, let's suppose this is electric field. Okay. So these are the flux lines. Flux lines moving in this direction. E like this. Okay. And let's suppose del L makes an angle theta. Okay. Like this. This is delta L. Okay. So this is cos theta angle. So this is will be along the direction of E. Okay. So this is del L cos theta. Okay. Now it can be written as dV upon dl is equal to minus E cos theta. Okay. So if you divide this by dl, so we'll get dV by dl uh, minus E dot E cos theta. Okay. So if you want to find dV by dl maximum, okay. So what will be the value of theta? If you want to find the maximum value of dV by dl, okay. So what will be the value of theta at that time? Anyone? 0. No. If you put Zero. 0, so cos 0 is 1. So this will be minus E. So you are getting minimum. So what else will be the value of theta? Pi. I, very good. So we get dV by dl is equal to E when theta is equal to 180 degree or pi. Since cos 180 degree is equal to minus 1, so this minus 1 into this minus, you will get plus E. Okay. So you will get maximum value of rate of change of potential with respect to distance. ठीक है, ये क्या है? Maximum rate of change of potential with respect to length. ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा. ठीक है. So dV by dl maximum is equal to E. So magnitude of electric field intensity. So magnitude of electric field intensity is given by maximum value of rate of change of potential with respect to distance. Okay.
एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस डीवी बाई डी एल, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव है, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यूज ऑब्टेन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस इंक्रीमेंट इज अपोजिट टू ई। ओके, सो नाउ ये तो मैक्सिमम क्लियर हो गया। So E is a positive direction. So E is opposite to the direction of which potential is increasing, of which potential is increasing rapidly, ठीक है। क्या मतलब है, E is equal to vector E is equal to minus dV by dl maximum an, ठीक है। सो जो ये an है, ये हमेशा क्या रहेगा, जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इससे नॉर्मल होगा, ठीक है। लेट dv by dl maximum is equal to dv by dl, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में है इसके, तो लेट dv by dl maximum is equal to dv by dl। सो क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर E is equal to माइनस dv by dn इंटू an। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो उससे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो E इज इक्वल टू दिस मच। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, या फिर मैं पढ़ा होगा ग्रेडियंट ऑफ टी, ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ टी is equal to GRD grad of T is equal to dt by dn an, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, ग्रेडियंट ऑफ टी इज इक्वल टू जी आर ए टी ग्रेड टी, और फॉर्मूला क्या होता है, डी टी बाई डेल एन ए एन, ठीक है। सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एन, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में होगा वो हमेशा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस टी इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। आगे देखिए, अब
इसको यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, माइनस डीवी बाई डी एन ए एन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये ग्रेड वी है, सो ग्रेड ई विल बी इक्वल टू, सॉरी सॉरी, ई इज इक्वल टू, तो वेक्टर ई विल बी इक्वल टू, यहाँ पर वी रख दीजिए, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ वी, और यहाँ क्या है, नेगेटिव। सो ई इज इक्वल टू माइनस, स्मॉल माइनस ग्रेडियंट ऑफ, ये है रिलेशन ई और वी में, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, रो वी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ डी, यहाँ होता है ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ वी, तो जो डेल वी है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल पार्शियल डेल वी डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड डी जेड, ठीक है। सो v is the unit function of x y z, so the total differential v can be written like this, ठीक है। और dv क्या है, dv जो है वो है e डॉट dl है, माइनस e डॉट dl, ठीक है। और e क्या है, ex ax प्लस ey ay प्लस ez az, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट dl कैसे लिख सकते हैं, dx ax प्लस dy ay प्लस dz az, ठीक है। तो ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। आपको क्या मिल जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस एक्स dx माइनस ey dy माइनस ez ez, ठीक है। और dv किसके बराबर था, डेल v बाई डेल एक्स dx प्लस डेल v बाई डेल y dy प्लस डेल v बाई डेल dx माइनस ई बाई डी वाई माइनस ई जेड ई जेड, और जो dv होता है डेल v बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल जेड डेल वाई डी जेड प्लस डेल v बाई डेल जेड डी जेड, ठीक है। इन दोनों कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल वाई, और ई जेड इज इक्वल टू डेल v बाई डेल जेड। जब यहाँ पुट किया तो आपको ई की वैल्यू मिलेगी, और ये किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट वी के बराबर होता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट वी क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा ग्रेडियंट वी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स एक्स डेल वी बाई ए वाई डेल वी बाई डेल वाई ए वाई, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ठीक। ये है ग्रेडियंट वी का फॉर्मूला, ठीक है। सो डाइवर्जेंस डी जो होता है वो क्या होता है, डेल डी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल डी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल डी जेड बाई डेल जेड, ठीक है। यहाँ पर dx को डिफ्रेंशिएट करते हैं dy को y के साथ और dz को z के साथ, और ये आपको ये दोनों वेक्टर है, ठीक है। ये भी वेक्टर है, वेक्टर ऑपरेटर d, तो वेक्टर वेक्टर आपको स्केलर मिलेगा। यहाँ पर v जो है वो स्केलर होता है, ठीक है। तो जब इसको ये भी ग्रेडियंट वैसे लिख सकते हैं, बताता हूँ, ये आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। सो मैंने बताया था वेक्टर ऑपरेटर
जो होता है वो होता है डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। वेक्टर ऑपरेटर का फॉर्मूला ये होता है। तो वेक्टर ऑपरेटर ऑन स्केलर क्वांटिटी वी इक्वल टू वी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए। तो ये आपको मिल जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड। और ये किसके बराबर है? ये ग्रेड वी के बराबर है। ठीक है। सो वेक्टर ऑपरेटर वी ऑन वी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है। सो ई क्या होता है? ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है। ये आपको मिल जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑपरेटर वी। ठीक है। इस तरह। ठीक है। तो ये रिलेशन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वी के बीच में ये रिलेशनशिप है। ठीक है। तो अभी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखते हैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है। एक तो यहां लिख दिया हूं मैं, किसके लिए? ग्रेडियंट ऑफ वी इज इक्वल टू, ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ वी इज इक्वल टू दिस। ठीक है। ये रेक्टेंगुलर के लिए। अब सिलिंड्रिकल के लिए तो आपको सबका फॉर्मूला तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़ना है। ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ वी और वेक्टर ऑपरेटर वी विल बी इक्वल टू डेल वी, ये रो के रिस्पेक्ट में एरो प्लस 1 अपॉन रो डेल वी बाय डेल फाई ए फाई। ठीक है। प्लस डेल वी बाय डेल जेड ए जेड। ठीक है। तो आपको क्या करना है? v को रो के साथ डिफरेंशिएट करना है पार्शियली इनटू ए रो। ठीक है। और यहां पर हमेशा रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन रो डेल वी बाई डेल फाई ए फाई, वी को फाई के साथ, मतलब आपको पोटेंशियल को रो के साथ, फाई के साथ और जेड के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। और उसके साथ ये ए रो और ये ए फाई ए जेड। यहाँ पर v को x के साथ ए एक्स, v को y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन ए वाई, फिर z के साथ इंटू ए जेड। इस तरीके से आपको ये ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है। फिर स्पेरिकल के लिए ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू डेल v बाय डेल r, वैसे ही r के रिस्पेक्ट में, प्लस जब हम इसके बाद थीटा आता है तो r डी थीटा लिखते हैं तो वो हो जाएगा 1 अपॉन r, 1 अपॉन r डेल v बाई डेल थीटा ए थीटा। ठीक है। देखिए ये कैसा होता है? डी रो, रो डी फाई और डी से। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर रो है तो इसलिए 1 अपॉन रो से इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है। और यहाँ पर कैसा होता है स्पेरिकल के लिए? ई आर, आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है। तो ये डेल बाई ये वही रहा सेम, यहाँ पर 1 अपॉन r से किए हैं। अब ये r साइन थीटा है तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन r साइन थीटा डेल v बाई डेल फाई। ये आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद करना होगा तीनों कोऑर्डिनेट के लिए। वैसी डायवर्जेंस का भी आपको याद करना।
This is formula for gradient of V. Okay, for rectangular, for cylindrical, and for spherical. ठीक है. बिल्कुल बना लेते हैं. Given V is equal to potential V is equal to 60 sin theta upon r square. ये V दे दिया हुआ है आपको. ठीक है. इन फ्री स्पेस फाइंड and point P is given P 60 degree and 25. ठीक है. पॉइंट P दे दिया हुआ है आपको, इतना है. आपको फाइंड करने को बोल रहा है. फाइंड फर्स्ट VP, potential V at point P. Second EP. ठीक है. Then third dV by dN, rate of change of V with respect to normal. ठीक है. और लास्ट फोर्थ रो V at point. ठीक है. इतने सारा आपको डेटा फाइंड करना है. ठीक है. तो ये रो V तक आना है. अब आप देखिए कैसे. देखो, रो V इज इक्वल टू रो V और V, अगर आप माइनस ग्रेडियंट V करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेक्टर E. सो माइनस ग्रेडियंट ऑफ E इज इक्वल टू वेक्टर E. ठीक है. ये यहां पर मिल जाएगा वेक्टर E. ठीक. और अगर आप इसमें एप्सिलॉन नॉट E कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा. ठीक है. और D में डाइवर्जेंस D करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रो V मिल. ठीक है. और ये आपको रो V मिल गया. तो ये करना है आपको, यहां से स्टार्ट करना है. पहले क्या निकालना है? माइनस ग्रेडियंट. तो आपको क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा. फिर इसमें एप्सिलॉन नॉट ई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा. और डी डाइवर्जेंस ऑफ डी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रो भी मिल जाएगा. ठीक है. और और भी बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे. अगर डी मिल गया आपको, डबल डिफ्रेंशिएशन डी डॉट डी एस करोगे, गॉस लॉ लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा. ठीक है. और रोवी से भी आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन रोवी डीवी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज में. ठीक है. तो इस तरीके से ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है. कहां से चालू किया मैंने? पोटेंशियल से. पोटेंशियल का माइनस ग्रेडियंट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा. डी का डाइवर्जेंस निकालोगे तो रो भी मिल जाएगा. रो भी का ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्यू मिल जाएगा. ठीक है. और डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इसका सरफेस इंटीग्रल निकालोगे डी डॉट डी एस का तो आपको फिर से यहाँ से क्यू मिल जाएगा. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है
ये रिलेशन आप इससे बहुत कुछ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं। फाइंड वीपी। ठीक है, तो वी एट पी क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 60 साइन थीटा। ठीक है, ये है, ये हो जाएगा आर, ये थीटा और ये पाई। आर थीटा पाई होता है। ठीक है, तो 60 इंटू साइन थीटा कितना दिया है 60, ये हो जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 3 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सो वी दे दिया आपको 60 साइन थीटा आर स्क्वायर। आपको पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है, पी पर। ये कितना है 360 डिग्री और 25 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको मिलेगा 5.774 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ये होता है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला लगाना होगा ग्रेडियंट वी। ठीक है, सो ग्रेडियंट ऑफ वी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल आर ए आर। ठीक है, बहुत आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल आर प्लस 1/r। ठीक है, ये आर से डिवाइड कर दीजिए, डेल वी बाई डेल थीटा ए थीटा प्लस 1/r साइन थीटा डेल वी बाई डेल फाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा डेल बाई डेल आर, वी की वैल्यू है 60 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ए आर प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा 60 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ए थीटा। ठीक है, और ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू आपको पाई करना है, और यहाँ पर ये 60 साइन थीटा और आर स्क्वायर है, फाई नहीं है तो वो आपको जीरो मिलेगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो हो जाएगा जीरो। और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r स्क्वायर, ये कितना होता है 2/r क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 120 साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर इज 2/r क्यूब, तो 2 कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय आर क्यूब, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा माइनस 60 कॉस थीटा आर स्क्वायर ए थीटा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको ई, ई इज इक्वल टू दिस मच। और ये कहाँ फाइंड करना है, एट पी, ई एट पॉइंट पी, आर 360 डिग्री और 25 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू एट पी, ई पी इज इक्वल टू 120, थीटा कितना है 60 साइन 60 डिवाइड बाई आर कितना है 3 का क्यूब माइनस 60 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये है ए आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर ए थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3.849 ए आर माइनस
1.11 थीटा। तो ये आपको मिल गया ईपी की वैल्यू एट पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? ई फाइंड करना है। ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी। ठीक है, ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, उसमें पुट किया, ई की वैल्यू मिली आपको 120 साइन थीटा अपॉन आर क्यूब ए आर माइनस 60 कॉस थीटा आर स्क्वायर ए थीटा। और ये कहाँ फाइंड करना है आपको? 360 डिग्री और 25 डिग्री। ये आर है, ये थीटा है, और ये फाइव। आर की जगह 3 और थीटा जगह 60। इसको सॉल्व करना। ठीक है सर 5 वाला टर्म 0 कैसे हुआ? देखो, ये किसके रिस्पेक्ट में करना है? फाइव के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, और आपका जो v है, v इज इक्वल टू 60 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा और आर है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ये 0 हो जाएगा ये टर्म। ठीक है, यस सर, यस सर। तो यही नहीं। हाँ, तो जो भी टर्म नहीं है वो वाला अपने आप, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ रखोगे विद रिस्पेक्ट टू फाइव, ये दोनों कांस्टेंट है, साइन थीटा और आर स्क्वायर, तो आपको वो 0 मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा फाइंड करना है आपको डीवी बाई डी एन। So dV by dN is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ, ये देखा था dV by dN E के बराबर होता है, और E कितना मिला हमको? E is equal to 3.849 kR minus 1.11 kθ. So dV by dN will be equal to under root 3.849 स्क्वायर माइनस 1.11 का स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा 4.4 वोल्ट्स पर। ठीक, अब फोर्थ फाइंड करना है आपको रो वी। रो वी होता है बाय मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन डाइवर्जेंस डी के बराबर। ठीक है, और डी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ठीक है, और यहाँ पुट कर दो। So D will be equal to epsilon naught 120 sin theta upon r cube AR minus 60 cos theta r cube a theta, ये होता है। ठीक है, अब इसका आपको डाइवर्जेंस डिफाइन करना है। ठीक है, सो डाइवर्जेंस ऑफ डी will be equal to 1 upon r square del by del r square dr plus 1 upon r sin theta sin theta del by del theta sin theta d phi। ठीक है, और फाई वाला टर्म नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर फाई नहीं है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका डी आर, और ये वाला टर्म हो जाएगा डी थीटा। सो आई एम नॉट राइटिंग डी फाई टर्म बिकॉज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। सो आपको सबका फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ग्रेडियंट का और डाइवर्जेंस का, ये दोनों फॉर्मूला भी अब यूज हो गया। ठीक है, सो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 1 upon r square
डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर, और डी आर की वैल्यू कितनी है, ये है, इंटू 120 साइन थीटा अपॉन आर, इस तरीके से, माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इंटू साइन थीटा, और डी थीटा कितना है, ये है, इंटू माइनस 60 कॉस थीटा बाई आर। थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, ये हो जाएगा 120 साइन थीटा अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, ठीक है। और ये साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 2, ठीक है। ये हो जाएगा -32 साइन थीटा 2 डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, सो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इंटू 120 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन आर साइन थीटा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कॉस थीटा, तो फिर से 60 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा -120 साइन थीटा बाय आर टू द पावर 4, और ये मिल जाएगा आपको +60 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय, सॉरी आर, आर टू द पावर 4, और ये साइन थीटा, ये मिल गया आपको डाइवर्जेंस डी, इस तरीके से। सो ये है डाइवर्जेंस डी का फॉर्मूला। इसको सॉल्व किया तो आपको मिला -120, सॉरी एप्सिलॉन नॉट भूल गया हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट भी लिखना है आपको, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, और भी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि ई से एप्सिलॉन नॉट माइनस करोगे, ठीक है। और कहाँ भी फाइंड करना है, ये किसके बराबर है, रो वी के बराबर, ठीक है। सो रो वी एट पी, ठीक है, पी पॉइंट क्या है, 360 डिग्री एंड 25 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड कर लो, तो रो वी विल बी इक्वल टू -120 साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय आर, कितना है, 3 टू द पावर 4 प्लस 60 cos 2 into 60 degree डिवाइड बाय r to the power, मतलब 3 to the power 4 into sin 60। ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -7.573 पिको कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फाइंड, चलिए आज के इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई डाउट आज आज की क्लास में? नो सर। No, sir.
Thank you then. You can leave now. Thank you, sir. Thank you, sir.